I can share. Before we start, let us do one small thing. Yeah. Rahat, can you put on your camera? Yes, it is. So it's her birthday today. Oh, Okay. wish you happy birthday, Happy birthday. Happy birthday, Rahat. Happy birthday, Rahat. Happy birthday, Thank ma'am. you. Thank you. Thank you. Thank you. हो गया birthday, चलो. अभी किस किसने होमवर्क किया है एंड क्या क्या किया है? So I can. यस पल्लवी. हाँ, मैं एक recent example दे सकती हूँ जो कल ही हुआ है. हाँ. It has been, took place yesterday night. Okay. Actually, that is an example of map is not a territory. Okay. Right. Yes. See what happened. Before few days, again some negative thoughts were coming in my mind that some online forgery or some online mishappenings can happen with me. It was coming, incidents and all the things which I was seeing or reading. So coincidentally, every time it was related to that. Okay. And what happened yesterday, that I had to pay some money to my sister-in-law in her account. So I told her to give that number, her account number details, and I should have shared the amount. By mistake, what she did, all the digits were same, but the last two digits she misplaced it. And what happened, sir, that the account was in I thought that it was in SBI, but the account was in Bank of India. So 2 times the transaction got, like nahi hua, failed. Faked, right? Then again I told her that give me that, again I want to see that thing. So she said कि मैंने details सही दिए हैं. You once again go through, Didi. You once again see the things. Again I saw, then I got that yes, Bank of India, the amount, the account was in Bank of India, right? So I transisted the money and it was like 11,000. I did it, and then when I told her ki check karo that have you got that amount in your account, and she said that no Didi, I haven't got that message. I haven't got message till yet. I told to check the account number again, and then she said that oh shit, I gave you the wrong account, means the last digits are misplaced. So from yesterday night I didn't had a sleep. Luckily my brother is a branch manager in SBI, and we have links in other banks also. Many of my brothers are, one is in Bank of India and all, so they coordinated, and now the amount has been on hold and it will be debited in my credited in my account back. Good. So this is the thing which I correlated. Yes. Map is not a territory. Anyone who has any other incident? Sir, I have completed my homework. Yes, sir. Sir, the first was about the successful person and the success parameters. That was the question, sir. Yes. So according to me, sir, successful person in my eyes, I consider MS Dhoni. Okay. Because I admire him, and I felt like sir, success is a very broad term, because for different persons, success can be different things. Like money-oriented mind, if he earns a lot of money, he can think that I am successful, like that, sir. But why I consider MS Dhoni as successful? Because he has balanced out many aspects of life in a very beautiful manner, like the money part, the family part, the spiritual part. So according to me, his success parameters are matching with me. So I consider him as successful. Amazing. So what was the most important belief which Dhoni has given to the world? Believe in yourself. What was the most important belief which he gave to the world after winning the World Cup? He had said it openly. Stay calm. Don't remember, sir. You can even win on the last ball. Yes. ये belief उन्होंने दी थी. Yeah. Because whenever you are trying to analyze any person, try to see how differently they are doing the things, how he managed in the last over, and
took over the complete charge of the game. Yes. तो ये सबसे बड़ी उन्होंने बिलीव दी थी कि you can even win on the last ball. Yes. फाइनली अपने एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कुछ लोगों को हमेशा यही लगता है कि मैंने हमेशा बचपन से मुश्किलें ही देखी है, मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं. बट देन लाइफ ऑलवेज गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू पुट योर एफर्ट्स एंड मेक द थिंग्स बेटर. अगला एक्सपीरियंस कौन शेयर करना चाहेगा? वी हैव 5 more minutes to actually go for the process. अगला कौन बताएगा? Yes please. Yes please. प्रणव. सर एक्चुअली द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन मैंने देखा है सर एलन मस्क, as he is having the never giving up attitude. Okay. And that is not a territory. सर ये मेरा ओरिजिनल इंसिडेंट है. एक्चुअली when I was in a hostel in 11-12, I was in a I can't take the name of the institute. No, that's fine. वहाँ पे जो बट सर वहाँ पे जो खाना बनता था ना सर, तो उसमें हर सब्जी में मतलब आलू डलता था और वो कैसा आधा कच्चा होता था. तो सर उस वजह से क्या हो गया, मेरा माइंडसेट अब ऐसा बन गया कि मतलब वहाँ खाना खाओ तो वो आधा कच्चा और पानी पानी होता है, वहाँ पे खाना कभी मिल ही नहीं सकता. एंड द रोटी, वहाँ की रोटी सर जस्ट लाइक एन सुदर्शन चक्र, किसी को फेंक के मारो सर धड़ से अलग. But the same thing when I was qualified the JEE मेंस, उन्होंने हमको नागपुर शिफ्ट किया. बट सर वहाँ का खाना लाइक अ 5-star होटल सर. तो सर वो एक माइंडसेट बन गया कि अगर नागपुर जाकर उस इंस्टीट्यूट में खाना खाओगे तो वहाँ का खाना अच्छा है और जंगलपुर में खाओगे सबसे वर्स्ट, लाइक दैट सर. थैंक यू सर. कभी एनसीसी के कैंप में गए हो क्या? सर एक्चुअली चांस नहीं मिला, मैंने ट्राई करना चाहा बट एक्चुअली एज निकल गई थी. जो इंसान एनसीसी के कैंप में 12 दिन एनुअल ट्रेनिंग कैंप पे खाना खा सकता है ना, वो दुनिया में कहीं भी खाना खा सकता है. सब कुछ कर लेगा, सब कुछ कर लेगा. और जो खाना मिलता था उसमें से कभी कभी कीड़े मकोड़े इल्लियां निकलते थे सर. एनसीसी वाले इतना भी गंदा नहीं देते खाना, क्योंकि मैंने 2 साल आई वाज अ सीनियर कैडेट इन एनसीसी. बट खाना देखा है वहाँ का खाना जो खा पाएगा वो कहीं भी टिक पाएगा. और कोई एक्सपीरियंस? सूर्य प्रकाश जी, यू आर वेरी सीनियर पर्सन, आप क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सर? नमस्ते सर. नमस्ते. यस, आपका शेयर. You have been a pioneer in Indian aluminium industries as far as I believe. Yes sir. तो जिंदाल एल्यूमिनियम एंड ऑल द एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज आपको जड़ से पता है. थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा डिगिंग करा है. I would really request you to share your experience coming from the industrial background. आप क्या देखते हैं? पहले अपन सोचते हैं कि अपन अप्लाई करेंगे तो काम बनेगा, इंटरव्यू फेस करेंगे तो काम करेगा. लेकिन जो मैंने देखा है अपना काम अच्छा रहता है तो आपसे जो मिलते हैं, यानी कि कस्टमर मिलते हैं, सप्लायर मिलते हैं और क्लब में जो मिलते हैं या मैनेजमेंट एसोसिएशन मीटिंग में जो मिलते हैं, वो आपके लिए मार्केटिंग कर देते हैं. यस. मैंने एक भी जगह एप्लीकेशन नहीं किया है. राइट फ्रॉम द फर्स्ट जॉब ट्रेनिंग के लिए गए थे, जो इंजीनियरिंग के बीच में जो ट्रेनिंग होती समर वेकेशन में, वहाँ ट्रेनिंग के लिए गए. तो बिफोर आई कुड रीच बैक टू द कॉलेज, माय अपॉइंटमेंट लेटर वाज विद द प्रिंसिपल देयर. तो ये जो अपना कंसेप्ट कि मेरे को बेस्ट करना है, अपने इंटरव्यू में बेस्ट करना है, नहीं, उससे अच्छा है कि आप अपना अच्छा काम करें तो आपका काम बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी. अमेजिंग सर. It is really a good guidance. और अबू धाबी जब गया तो वहाँ पर भी वहाँ से कॉल आया था कि आप आने में इंटरेस्टेड हो. मैंने कहा आपका वीजा आ जाएगा तो कर देंगे. तो शाम तक उन्होंने पासपोर्ट पहुँच गया, सवेरे 10 बजे तक मेरे पास सारा वीजा आ गया और दूसरे दिन मैं गया और तीसरे दिन वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर था. अमेजिंग. तो ये एक्सपीरियंस जो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है, अपने काम पे ध्यान देना है, तो आपकी सक्सेस आपको फॉलो करेगी. बिल्कुल. थैंक यू सर. शैलेश सहस्त्रबुद्धे, कैन यू पुट ऑन द कैमरा? शैलेश, आर यू देयर? शैलेश सहस्त्रबुद्धे? I think he is not there. Okay, और कौन शेयर करना? हाँ शैलेश. यस.
Yes. Welcome. Good evening, sir. Can you see me? थोड़ा जोरात बोललास तर खूप छान होईल यार. I'll be Okay, happy to okay. see you This after way a long with time. me, this way? Okay, okay. One of the experience or one of the good things which I learned throughout my career is the first thing is never give up. As you rightly said, in one of the while one of the participants was sharing experience about the Mahendra Singh Dhoni, that he won the match in the last over or at the last ball. So related to that, I saw one beautiful picture. There was one. Your voice is bit low. Your voice is bit low. Okay, okay. Can you hear me now? Yes. Okay. So I saw one picture. There was one bird, and that bird had caught one frog. The frog was almost in the मतलब उस bird के मुंह में था, in the beak of the bird, and वो निगल रहा था उस पंछी को. But at the same time, that frog उस फ्रॉग ने उसकी जो गर्दन है पंछी की वो बहुत जोर से पकड़ ली थी. So that was a beautiful picture which teaches you that never give up. So if I get that picture, I will definitely would like to share that picture with all of you. That is definitely. one of the good learnings I had. And other learning is change is constant. Yes, change is inevitable. We can't avoid the change. अच्छा फ्रेंड्स, जरा हम दोनों में क्या कॉमन लग रहा है दिखाओ. हम दोनों में कॉमन क्या है? आपको भी चेंज इनएविटेबल है, आप चेंज होते जा रहे हैं. देख के बताओ ना क्या कॉमन है दोनों में. सर बाल, दोनों के थोड़े बाल कम बाल. दोनों के कम है. एंड हम दोनों एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज के एक ही क्लास के पास आउट है 1995 के. एक ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के एक ही क्लास के पास आउट. तो दोनों के भी बाल उतने ही गए. आप सीवीपी से हैं सर? नहीं, पुणे से दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से थे. हम नॉर्मल स्टूडेंट से सर. हम लोग सीवीपी वाले कहाँ हैं? नॉर्मल स्टूडेंट इतनी हाइट पे पहुंचते हैं, देख लीजिए अभी. तो कोशिश और किसी को कोई एक्सपीरियंस है so that we can start the things. Sir, from yesterday night, from yesterday night, actually from today, I told her, my sister-in-law, and I, in myself, I have started thinking that yes, in my bank account, I will have 100 crores within 6 months. Amazing. I have to share you something. Yes, sir. ये बात सबके लिए एप्लीकेबल है. एक सेकंड. हाँ, ध्यान से सुनना है. इसमें से क्या सीखते हो बताना. क्या है धर्म को जानने का मार्ग? धर्म से सम्मान मिलता है अंगराज. जीवन में यदि अपमान मिले तो ये मानना उचित होगा कि धर्म का वहन नहीं किया. और जिसे जन्म से ही केवल अपमान ही मिला हो, वो क्या करे वासुदेव? सम्मान के लिए संघर्ष करे, किंतु अधर्म का साथ ना दे. अपने अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे. What could we understand from this? नहीं, धर्म पे चलो, अपना काम करो. अच्छा, धर्म is like महाभारत के वक्त धर्म था. Now it comes to ethics. And as last sentence which we could interpret, जो अपना नहीं है उसकी तरफ जब हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं किसी चीज की, तो probably those efforts can go into futile waste. Always set a legitimate, a defined target and then take a small step. जब for example, जैसा अभी पल्लवी ने कहा कि 100 crores, having a target of 100 crores is absolutely good, but if she focuses on 100 crores, probably she will end up with a stress. But if she focuses on
10 lakhs, 50 lakhs, 1 CR, things will be easy. जब आपके सामने खाना आता है तो आप एकदम पूरा खाना नहीं खाते हो. It takes time. My boss in 2006 when I had joined sales, 2005 to be precise, सबसे पहला उन्होंने मुझे यही कहा था कि विवेक, you have an excellent career, but don't try to jump over the ladder. Go step by step. 2005 से लेके 2013 तक I climbed the ladder from a junior sales engineer to a national sales manager in sales. फर्क बहुत पड़ता है, बट एक दिन में कोई नेशनल सेल्स मैनेजर नहीं बनेगा, ना ही किसी के पास एक दिन में 100 CR आएंगे. It is important that you take small steps because these small steps help you to build the foundation and take a better step further. जब अगला जंप आपको लेना है तो वो जंप से पहले आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए. अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप कहीं पर भी कॉर्पोरेट में जंप ले सकते हो, प्रोफेशनल लाइफ में ले सकते हो, पर्सनल लाइफ में ले सकते हो. बट अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो प्रोबेबली यू माइट टेक अ जंप एंड देन यू माइट नॉट सी एनीथिंग बिलो यू कि अब आगे कहाँ जाए. सो ऑलवेज क्लियर द कंसेप्ट्स, क्लियर योर स्टेप्स, हैव डेफिनेट स्टेप्स. एक एक स्टेप करके आगे जाओ, आप कभी पीछे नहीं आओगे. बट एवरी स्टेप इज इंपॉर्टेंट. सो डोंट सेट अ ह्यूज टारगेट, सेट स्मॉल टारगेट्स, चंक डाउन योर गोल्स. जो भी आपको 100 CR पल्लवी करना है तो 100 CR हो पाएगा, प्रोवाइडेड यू डोंट फोकस ऑन 100 CR बट फोकस इट ऑन चंक डाउन दैट 100 CR इनटू एटलीस्ट whichever is best possible way. भले आपको महीने में सपोज दिसंबर तक 10 लाख रुपए लेने हैं, तो once you gain that confidence for earning 10 lakhs by December, you can take a next step for 50 lakhs. बट अगर आप एकदम 1 करोड़ के पीछे भागोगे तो वो बड़ा लगता है एंड फिर वो सिर के ऊपर बोझ आता है. जैसे कल मैंने वेट लॉस के लिए पहले दिन भी बोला था. नाउ अगेन पुट दैट कंसेप्ट. अगर किसी को 5 किलो वजन, ये ध्यान से सुनो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द वेट लॉस एंड इट वर्क्स एवरीवेयर. अगर 5 किलो वजन 2 महीने में कम करना है विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट जिमिंग, इज इट पॉसिबल? यस, आपने बताया था कल. यस, अभी मैं बोल रहा हूँ. now I'm telling you about a chunk down exercise. 5 किलो वजन 2 महीने में, 1 महीने में 2.5 किलो, 1 महीने में हफ्ते कितने होते हैं? 4 हफ्ते में हो गए अप्रोक्सीमेटली 750 ग्राम. अप्रोक्सीमेटली 90 grams. Now do you think it is possible to get it? डेली 90 ग्राम तो आसानी से पॉसिबल है. एंड वो डेली 90 ग्राम आसानी से पॉसिबल करने के लिए आपको बस खाना ठीक से चबाना है. ठीक है, बस 32 फोकस ऑन द बिग थिंग, चंक डाउन इट. जितना आप जल्दी चंक डाउन करोगे किसी भी चीज को, तो आप देखोगे कि आप ठीक से खा पाते हो. आप होटल में जाते हो, घर पे पिज्जा मंगाते हो, तो पिज्जा ऐसे कैसे मुंह में किसी के नहीं जाता है. यू हैव टू कट डाउन इनटू स्मॉलेस्ट पीसेस. So why you have to focus on the goal in such a way which is like बहुत ज़्यादा लगे. स्पेसशिप भी जब लॉन्च होता है, they divide it into equal teams. अलग अलग टीम्स पे काम करती है and then they come out with a common product. So never think of a single end. जो आपका गोल है उसको सबसे पहले चंक डाउन कीजिए, then you will be able to build your confidence. किसी भी फील्ड में हो, बट आपका कॉन्फिडेंस नहीं तो एक झटके में कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी अगर आप पूरे 100 करोड़ की तरफ ध्यान दोगे तो. बिकॉज इट विल बी अ ह्यूज बर्डन. हाँ, ये अंबानी साहब के लिए ठीक है जिनका डेली इनकम ही 450-500 करोड़ रुपए होगा. फॉर हिम 100 करोड़ इज लाइक 5 minute जॉब. बट फॉर अस वी हैव टू थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव दैट हाउ वी कैन बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस. क्योंकि 100 करोड़ का कॉन्फिडेंस आज अपने में होना चाहिए तो 100 करोड़ हम लोग बात करें. बट लाख 10 लाख का तो कॉन्फिडेंस होता ही है. सो बिल्ड दैट स्टेप फर्स्ट एंड देन सी दैट थिंग्स आर गेटिंग बेटर. बट हैव स्मॉल स्टेप्स एंड यू विल सी द सक्सेस 200%. सेकेंडली, इसी क्लिप में हमने ये भी सुना कि पीपल हु हैव बीन सफरिंग सिंस चाइल्डहुड वन और द अदर वे, सबके साथ आता है. इसका मतलब ये नहीं दैट दे शुड गो फॉर एनी अनएथिकल प्रैक्टिस, बिकॉज अनएथिकल प्रैक्टिस नेवर गिव्स यू अ सक्सेस. एक पर्टिकुलर लेवल पे लेके आएगा, बाद में ऐसा नीचे गिराएगा कि जिंदगी की महाभारत हो जाएगी. तो
try to find out what is the best way, and ethics always help you. Secondly, धर्म, जिसको धर्म कहते हैं, अगर ethics कहोगे तो you can always stand in front of mirror and speak with yourself confidently कि हाँ मैंने ईमानदारी से काम किया है. जिस दिन आप unethical way लेते हो उस दिन things can go bad, and आप खुद के नजर में भी जाओगे, बच्चों के नजर में भी जाओगे, घर में भी प्रॉब्लम होगी. So try to take small steps and things will be very easy for you. ये important है कि आप क्या सोचते हो, आपकी सोच कैसी है, and उस सोच से सामने वाले का क्या भला होने वाला है. Now comes my question. Again, उसी weight loss पे वापस आऊंगा. Who would like to volunteer? Rahat, Rahat, okay. I'll put you on the. I'm putting you on the Rahat. Birthday girl है. कहाँ गई? I'm here. Happy birthday to you. Thank you. Great. Okay. So the question is, why exactly do you want to lose the weight? 10 reasons. The first reason is that because health, I'm not overweight, but I'm a little extra weight. The second is I have ankle injury, and if I gain weight, it will trouble me more in the future. Okay. So it's just to be healthy, and I'm used to being into a certain what do you say, weight, which is third reason is that I don't have 10 reasons. 3 reasons. And yes, I want to look good. I want to feel good by myself. I don't want people लोगों के लिए नहीं, but खुद को अच्छा लगने के लिए बहुत जरूरी है. Okay. Why? 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 Because because health issues. I don't like to, अच्छा लगने के लिए, अच्छा दिखने के लिए जो है उस पॉइंट पे, why you want to look beautiful? I want to look beautiful for myself. I'm still beautiful and I want to be stay like that. और मैं अपनी फेवरेट हूँ. वो कौन सी मूवी थी? जब भी मैं. So now comes the point that why exactly do you want to lose the weight? Again, the same question. For example, suppose if I have to answer, my first thing, as you said, being healthy is important. The more I'm healthy, the more I'll be agile. The more I'll be able to add productivity in my job. The more productivity I add, the more lives I can change. The more healthy I am, the more healthy I can see the world from a different perspective. If I am healthy, I can travel wherever I want. If I am healthy, I can wear the clothes which I want. जितने ज्यादा आप why define करोगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके एक या दो ही why हुए, तो probably tomorrow you might lose that motivation of coming down on the weight or managing the weight. But आपके जब multiple why होते हैं, and उस multiple why में भी हमेशा एक बात ध्यान में रखना, most of the people who live, they don't live for themselves, they live for others. लोग क्या कहेंगे, लोगों के दिमाग में क्या होना, I am not talking about you. लोगों के लिए अच्छा लगना चाहिए, लोगों के लिए अच्छा लगना चाहिए, खुद को अच्छा लगना चाहिए. लोगों, अगर आप ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे your personality matters, definitely you should look good. Secondly, if you are adding value to someone's life, definitely you should see that you are also healthy. क्योंकि अगर कल मैं 100 किलो का होके अगर आपके सामने वेट लॉस की बात करूं तो आप बोलोगे पहले खुद को देख. So whatever you think, I have list of things, then I can tell you. that has to be listed on, because that comes to why. जब भी अपने को कोई भी चीज करनी है तो उसके इतने सारे why बनाओ, and you put it as a motivation for yourself that yes, this is why I need to control my weight, this is why I need a healthy lifestyle, this is why I need a good job, this is why I need a कुछ लोगों को शादी करनी होती है, कुछ लोगों को रिलेशनशिप ठीक करने होते हैं, हर एक का why अलग होता है. सो डिफाइन योर वाई. क्योंकि सिर्फ वो कहना कि नहीं मेरा वेट कंट्रोल होगा तो मेरी हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होने के बाद क्या? बिकॉज टुडे वी आर लर्निंग सब मोडालिटीज, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया कि
जब आप किसी चीज को देखते हो, ट्राई टू फाइंड आउट वाई। हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है, उससे क्या होगा? लोग अच्छा बोलेंगे, उससे क्या होगा? आपकी फैमिली लाइफ कितनी अच्छी होगी? व्हाट वैल्यू यू कैन ऐड टू योर फैमिली? अगर सपोज आपका वजन ज्यादा है, probably you might not be able to give 100% to your family. Probably you are not able to enjoy with your kids. Probably your relationship might have already gone on toss. तो सभी के लिए जो आप जब भी कुछ चीज करते हो तो उसकी वाई जब डिफाइन करोगे तो आपको खुद एग्जैक्ट आंसर मिलेगा दैट वाई यू वांट टू डू इट. सो सबसे पहले आप देखिए कि खुद की लाइफ में जब भी कुछ भी करना है, थैंक्स फॉर वॉलंटियरिंग, जब भी कुछ भी करना है तो सबसे पहले अपना वाई डिफाइन कीजिए. दैट सपोज अगर किसी को 5 लाख रुपए चाहिए अगले महीने, डिफाइन वाई एग्जैक्टली यू वांट दैट 5 लाख रुपीज, and then you will be able to you will be able to take a step towards that. But सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए ये सोच के काम नहीं बनेगा. Why you want that? जब आपका why डिफाइन होता है, क्योंकि हो सकता है किसी को ये 5 लाख रुपए अपने फैमिली के लिए चाहिए, किसी को और किसी चीज के लिए, बट वो why डिफाइन कीजिए, then it will be a motivational factor that why exactly you want to do the things. Second question comes to Kamya Bhandari. Can you please put on the camera? अपने पास और 2 मिनट है to before we start a session actually. Yeah. Kamya, are you there? Yeah, I'm here. Okay, just let me put you on the camera. कहाँ पर हो आप? दिखने रहे हो? Camera is on. हाँ, yes. हाँ, yeah. नहीं, अब तक कैमरा ऑन नहीं हुआ है. Please, can you put it on? It's on. Is anyone able to see her? No, sir. No, sir. No, एक बार sir. ऑन ऑफ कर देना कामया. Yes, give me a minute. Can you see me now? Yes, absolutely. Yes. So you want to be a psychologist? You have taken Not necessarily. Not necessarily. Okay. Yeah. So why have you taken admission for psychology? Because I wanted to know how the human brain works on a higher level. Okay, why? I do want to study how some people do something while other people do the same thing differently. Why? Why you want to study that? Why? That's a huge question, to be honest. So it's a proper answer that you want to study the different patterns of people, but why exactly you want to study? Because I've faced a lot of people in my life that do something differently. And how do I explain this? For example, I have to do an assignment. I have to write an essay. A person would write it differently and I would write it completely differently. Some people would say I'd copied it. I didn't do it though. And I just want to know what gives them that perception that theirs not that good, but mine is really well. And what makes how exactly will it help you when you understand, when you are able to understand a person from their psychology? How will it affect your family life? How will it improve your family life? I'll say. I might understand why my brother do stuff, what he does, you know, Okay. why he irritates the hell out of me and everything. So how exactly will it help you when you learn the psychology and when you understand that why your brother is behaving that way? How will it exactly help me? That I don't know, to be honest, till now. Probably you would be able to decide a strategy that how exactly you should behave when he is behaving that way. Probably. You will be able to make out that what will be his next move. Probably. So in this way, thanks Kamya. Yeah. So in this way, whenever you define your why before doing anything, you will see that you are able to find out the exact reason, what exactly will be your outcome. क्योंकि जब तक आपका outcome define नहीं होता है, जब तक आपको exactly reason पता नहीं चलता है, तब तक आप उस चीज के पीछे जा नहीं सकते. So this was a bit introduction. किसी ने आलू प्याज कुछ लाया क्या सामने? Yes. Yeah. सब कुछ है. आलू गिलास. कौन पहले आएगा? And Rajendra glass. ji? Sir, I want to try. Who wants to try? Sir, me and Anu. We all. I'm putting you on the screen. Just a minute. प्याज और शीशे का ग्लास एक दे देना. So here you are.
And this question goes to everyone. वो सामने आपके ले लो, जो ग्लास है, या जो ग्लास में आलू है, प्याज है, नींबू है, जो भी ले लो हाथ में. सर ये ग्लास के अंदर होना चाहिए? नहीं, बाहर हुआ तो भी चलेगा. ओके. हाथ में दे दो. उसने तो पूरे ग्लास में ठूस दिया है, ग्लास तोड़ दोगे आप. हाथ में. हाँ. Now describe it. This is aloo. हाँ, ये मत बोलो कि इससे आलू का वड़ा पाव बनता है वगैरह, ये सबको पता है. Describe आलू. ये आलू है. Like it's not good for diabetic. वो मत बताओ. How? What are you seeing about it? मैं इसके ऊपर ना कुछ ये दाग धब्बे हैं और ये थोड़ा इंडियन रोड जैसा है. इसमें पॉथ होल्स जैसे डिजाइन बना हुआ है और इसका शेप तो एग्जैक्ट शेप में नहीं है. ओके काइंड है. अगर इसको मैं पकाऊं तो अच्छा बन जाएगा कुछ भी, क्योंकि बाहर से तो कुछ खराब नहीं दिख रहा है. ओके है. इतनी देर में क्या तुमको बताऊं? कलर एक बार भी दिखाई नहीं दिया? कलर एक बार कलर सर मैंने सोचा कलर सबको दिख रहा होगा. सोचना अलग बात है. माय क्वेश्चन वाज यू टेल व्हाट यू आर सीइंग. बाकी के लोगों को कुछ नहीं दिखता है, तुम बताओ तुमको क्या दिखता है. ओके सर. ओके, इसका कलर ब्राउनिश है जैसा हर आलू का होता है. ओके. और अच्छा है सर. वेट भी अच्छा है तो अच्छा होगा पकाने में भी. शेप इसका एग्जैक्ट शेप में नहीं है. थोड़ा ओवल है और थोड़ा इधर उधर से थोड़ा चपाती जैसा बना हुआ है. ओके. तो और क्या सर, इतना ही. अच्छा. Is it a 2D image or is it a 3D image? 3D है सर ये. Okay. Is it heavy in your hand or is it lighter? हैवी है. Is it exactly in front of your eyes or is it in left or right? एग्जैक्टली आईज के इन फ्रंट है, थोड़ा नीचे. What exactly is your feeling when you are taking it in your hand? What is the feeling? Like थोड़ा कोल्ड है ये. हाँ, थोड़ा फीलिंग में थोड़ा कोल्ड है. कोल्ड है. ओके. हाँ कोल्ड है और थोड़ा हैवी है. अच्छा फील हो रहा है सर पकड़ने में. Okay. So these were her submodalities of आलू. अब कोई प्याज वाला सामने आ जाओ. एक मिनट. प्याज किसके पास है? Yes. अभी तुम्हारा टर्न हो गया आनू. Okay, तो sir. बोलेंगे सब बैंगलोर में जा रहा है. Would like to take a chance? कौन आए मतलब कौन है? क्योंकि मुझे एक मिनट. मैं मतलब कौन? सर मैं पल्लवी. एक मिनिट. परम तुझ्याकडे पण येतो, थांब जरा. बरं सर, बरं चालेल. हाँ, ये आपने आलू लिया है. ट्राई टू एक्सप्लेन इट एज पर योर लुकआउट एंड इसको प्लीज टेक इट सीरियसली बिकॉज दिस इज व्हाट द सबमोडालिटीज आर, दैट हाउ यू सी द थिंग्स. डिफाइन करो इसको. डिफाइन. सर मी. हाँ यस. यू आर. सर प्याज है. दिस इज ऑनियन सर. हाँ देखो सब लोग ध्यान से देखो. इसको ऑनियन बोलते हैं. कंटिन्यू. Sir, I have an onion in my hand and it's red in color. Okay. First point, please सब लोग पॉइंट्स नोट कर दो क्योंकि ये सब मॉडलिटीज हैं किसी भी चीज के देखने का तरीका. कंटिन्यू. So first was color. Yeah. Second was shape. Second was shape. Yes, it's a round. It's round in shape. Okay. Is it heavy in size? Is it heavy in the weight? No, it's light. It's light. Okay. Is it exactly in front of your eyes or in left or right? So it's in front of my eyes. I can see it directly. Is it big or is it small? So it's mediocre. Okay. What exactly is the feeling when you're taking it in your hand? So I can feel it's a little rough. Okay. Little rough. And by seeing it, I can see inside it that yes, if I cut it, I'll see the layers. Okay. And after cutting it, I can make many varieties with it, and I can add
as a species, I can spice and all. So I can add taste to any of the items which I prepare with it. Okay. Whenever I. एक मिनट, हाँ. So these were your submodalities. Yeah. अभी हम लोग जाते हैं प्रणव के पास. सब लोग ये पॉइंट्स लिख के दे रहे हो ना? Yes sir. Yes. अगला है प्रणव. प्रणव कहाँ पर है? यहाँ पर है. Thank you, sir. प्रणव, the question goes to you is, वो तुम्हारे गले में जो लटकाया हुआ है हेडफोन. यस सर. हाँ, उसके बारे में बताओ. सर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें 3 बटन से एक पावर स्विच और स्विच है और एक वॉल्यूम. इसमें ये जो वायर है इससे ये ब्लूटूथ थ्रू कनेक्टेड है, ब्लूटूथ डिवाइस है सर. तो इससे ट्रांसमिशन होता है, अपना वॉइस ट्रांसमिशन होता है ब्लूटूथ के थ्रू, एंड इट इज ब्लैक इन कलर सर. दैट्स इट सर. ओके. अब हम लोग यहाँ पर जब आप देखते हो तो एक ही चीज को, फॉर एग्जांपल वो एक अकेला आलू जो अनु ने डिस्क्राइब किया था, वो अगर दूसरा कोई डिस्क्राइब करता तो शायद और कोई परसेप्शन आता सामने का. सो व्हेनेवर यू सी वन थिंग, it is not necessary that the other person will also see the same thing in the same way. आप आपके हिसाब से उस चीज को देखते हो. अनु ने उस आलू पे उसको सारे इंडियन रास्ते दिखाई दिया, उबड़ खाबड़. प्रोबेबली और किसी को और कुछ दिखाई देता था. So whenever you are trying to see something, whenever you are trying to learn something, whenever you are trying to analyze something, try to see it from different perspectives कि क्या हो सकता है, क्या है. अभी और एक मैं छोटा सा क्लिप चलाता हूँ. यहाँ पर ये गाना सुनने के बाद किस किस को क्या क्या याद आता है, व्हाट इट वाज. जिन लोगों ने ये मूवी 1989 में जब रिलीज हुई थी, तब शायद आप में से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, बहुत लोग जिन्होंने पैदा हुए उन्होंने डेफिनेटली देखी होगी. सर 20 टाइम्स. सर मुझे रंगोली याद आता है दूरदर्शन का, जब हम किड्स थे तब आता था. I have seen it almost like 39 times. तो what अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं. हाँ. So what are the things which you can recollect? यहाँ हम लोग ऑडिटरी सब मोडालिटीज देख रहे हैं. Young आमिर खान. सुनते ही आपको क्या क्या याद आता है? आमिर खान. कॉलेज फेयरवेल पार्टी. ओके. फ्रेशर पार्टी. और मुझे आमिर खान, जूही चावला, और फिर उसके बाद खुद का कॉलेज टाइम. राज एंड रश्मि. सर एक ऐसा सॉन्ग जो हर फेयरवेल पार्टी में गाया ही जाता है. और पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस. सर पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस भी, इंडियन पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस भी दिखाता है. पापा कहते हैं बड़ा काम करें. हाँ, ऐसा गाना जो पेरेंट्स लाइक कर रहे हैं कि हमारे बच्चा गा रहा है. गुड म्यूजिक. And sir, appreciated by the parents. our question. अच्छा चलो और एक सब मोडालिटी ढूंढते हैं. 2 मिनट. The first love. Yes. I swear I was. वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है. First to 10, 12, 30 all. First to 10, 12, 30 all. क्योंकि सब मोडालिटीज अगर सीखने हैं तो यू हैव टू एक्सप्लोर दैट हाउ एग्जैक्टली द थिंग्स आर हैपनिंग. आपको बहुत मजा आएगा उसमें. एक मिनट. हाँ, किस किस को क्या क्या याद आया? बिकॉज गुड वॉइस, melodious songs. सर गुड वॉइस वगैरह मत बोलो. Yes. बी ऑनेस्ट कि क्या क्या एग्जैक्टली याद आया जब आप ये गाना सोचते हो, सुनते हो? सर गुड सर वॉइस ऑफ द मैंने सिंगर. रिसेंटली मीम देखा था इंस्टाग्राम में. अजय देवगन विमल पान चबा के वो रेड शर्ट वाले को थूक देता है, ऐसा एक कुछ मीम बनाता, तो मुझे वो देखते ही वो याद आ गया सर, टू बी ऑनेस्ट.
सर ठीक है, मुझे हाँ, कहीं ना एक कहीं वो सर लिंक कर गए। अगला मुझे सर एक पागल कमेंट याद खाना। आया कॉलेज टाइम पे व्हेन ही बिकेम द हीरो, so many of the boys of our college was getting so frustrated ये भी हीरो बन सकता है like that बट time ये sir गाना face सुनने के बाद कितने लोगों को अपने कैंटीन की मेमोरीज याद आए, कितने लोगों को बहुत सारी पुरानी चीजें भी याद आई जिन्होंने कुछ किया होगा लाइफ में, जिन्होंने सर? कुछ नहीं किया उनको कुछ नहीं याद नहीं आएगा। सर हितेन, सर हाँ हितेन, हाँ जी। सर मुझे अपने स्कूल डेज याद आ गए एंड वेरी इनोसेंटली आई हैड सीन अ गर्ल एंड आई वाज सो मतलब इम्प्रेस्ड विथ हर ब्यूटी दैट आई फेल्ट इल फॉर 3 days। इसको तो बोलते मुझे हैं सब मोडालिटी। ये सर मुझे याद आ गया इसको देख। यस, बिकॉज दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि जब आप किसी चीज को लिंक करते हो, ऑडिटरी सब मोडालिटी इसको कहा जाता है कि आप किसी चीज को सुनते ही आपको कुछ ना कुछ पुराना रेफरेंस याद आ जाता है। कैंटीन में सुना हुआ गाना, किसी के लिए गाया हुआ गाना, किसी ने आपके लिए गाया हुआ गाना, किसी को रेफर किया हुआ गाना, कि सुनते ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लिक हो जाता है। दिस इज ऑडिटरी सबमोडालिटी। अभी इसको मैंने ये दोनों गाने इसलिए सुना है बिकॉज व्हेन वी सी विजुअल एंड ऑडिटरी सबमोडालिटीज, इसको अब मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो वी ट्राई टू परसीव दैट इंफॉर्मेशन and it is stored in our mind. Plus, we also try to build the references around those particular things. If we have to do it this way, कि आप बचपन से आज तक आपने जो भी इंफॉर्मेशन लिया है वो विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक फॉर्म में लेते हैं। 5 सेंसेस होते हैं, उसमें से ओलाफैक्टरी एंड गस्टेटरी मतलब स्मेल एंड टेस्ट, बट यू कांट गो एंड स्मेल एंड टेस्ट एवरीथिंग, but you can see, you can listen, you can feel. Of course feel भी सब जगह जाके आप फील नहीं कर सकते, किसी को जाके आप डायरेक्टली हग नहीं कर सकते, बट देख सकते हो, सुन सकते हो। So any information which comes to you comes in these 3 forms, that is visual, auditory and kinesthetic. Kinesthetic मतलब touch, feel. Olfactory and gustatory are smell and taste. बट आपको स्मेल तभी आएगा जब किचन में कुछ दूध जल जाता है, आपका ध्यान नहीं है, किचन में गैस पे दूध था, जल गया, बुझ गया, गैस की बदबू आ गई, तब जाके आप देखते हो, बिकॉज दैट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन दैट समथिंग इज बर्निंग। बट नॉर्मल केस में जो भी इंफॉर्मेशन आप लेते हो, सपोज मूवी देखने जाते हो, सामने अभी जो आप मुझसे भी कुछ सुन रहे हो, यू आर सीइंग मी विजुअली, यू आर लिसनिंग टू मी इन ऑडिटरी फॉर्म, सो द इंफॉर्मेशन इज विजुअल एंड ऑडिटरी, बट एट द सेम टाइम you are converting this visual and auditory information into a kinesthetic form also. आप उसको खुद लिख रहे हो, जो लिख रहे हैं, and then this will connect your feeling immediately in your brain, कि आपके brain में permanently हो जाएगा। So whatever information you are taking, it always comes in 3 form. कुछ लोग visual होते हैं, कुछ लोग auditory होते हैं, कुछ लोग kinesthetic होते हैं। जो visual लोग होते हैं वो हमेशा visual चीजों में ही बात करते हैं, देखो कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। They have like words which are ready for them, कि वो बोलने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जो लोग ऑडिटरी होते हैं वो हमेशा सुनो, जिंगल बेल, जैसे मैं आज का होमवर्क भी वही मिलने वाला है सब लोगों को। तो ऑडिटरी जो है, इनके बोलने में ज्यादातर म्यूजिक, आवाज, साउंड से रिलेटेड चीजें होती है। एंड काइनेस्थेटिक लोग जो होते हैं, ये जैसे अनु ने बताया कि रफ है, इंडियन वर्ड्स की तरह है, वे फीलिंग्स आर अटैच्ड, वो काइनेस्थेटिक हुआ। तो जब आप किसी भी चीज को देखते हो, जब आप किसी चीज को सोचते हो, तो सबसे पहले आपको क्या याद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सूर्य प्रकाश जी से कहूँ दैट इफ यू हैव टू रिकलेक्ट योर फर्स्ट पोजिशन एज अ वाइस प्रेसिडेंट, व्हाट डू यू रिकलेक्ट ऑफ इट, तो हो सकता है उनको पहले ऑफर लेटर हाथ में आ जाए, या पहला उनको उनके बॉस का आया हुआ कॉल याद आ जाए, या उनको अपनी केबिन दिखाई दे। दैट इंडिविजुअल पर्सन विल सी अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ थिंग। कुछ लोगों को सबसे पहले विजुअल याद आ जाएगा, कुछ लोगों को ऑडिटरी याद आ जाएगा, कुछ लोगों को काइनेस्थेटिक। कर्मा पिक्चर जिन्होंने देखी होगी 15 अगस्त 1987, जब वो दिलीप कुमार
अनुपम खेर को थप्पड़ लगाता है, उस वक्त उसका एक फेमस डायलॉग है, ये थप्पड़ की गूंज मुझे हमेशा याद रहेगी। इट वॉज अ कंप्लीट ऑडिटरी डायलॉग कि मुझे वो गूंज याद रहेगी। फिर दिलीप कुमार साहब उसको कहते हैं रहने भी चाहिए, दैट वॉज अ काइनेस्थेटिक। हमेशा जब आप किसी चीज को देखते हो, एंड इफ यू रियली वांट टू डू गुड इन NLP, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। हर टीवी सीरियल में, हर एडवर्टाइजमेंट में इट इज कंप्लीटली विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। अगर घड़ी की एडवर्टाइजर आप देखते हो, अमिताभ एंड वो जो भी कोई लेडी है, कंप्लीट काइनेस्थेटिक एंड ऑडिटरी है। देखो आप उस एड को ध्यान से, वो ऐसे मुड़ के दिखाते हैं कि ये मूवी है या वो मशीन चालू है। मेरे घर में भी ये है, मैं भी यही यूज करती हूँ। कंप्लीट काइनेस्थेटिक एड है, वहां पे बाद में उन्होंने सिर्फ विजुअल के लिए उन्होंने मशीन दिखाई है। सो वॉट एवर यू ऑब्जर्व फ्रॉम टुडे, वेदर इट इज पीपल, वेदर इट इज ह्यूमन बींग्स, वेदर इट इज मशीन, जानवर, ट्राई टू सी कि क्या है। कुत्ता जो होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुत्ता काइनेस्थेटिक होता है। ही एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स, आके आपको चाटता है। इंसान काइनेस्थेटिक होगा तभी चाटेगा नहीं, बट कुत्ता काइनेस्थेटिक ही होता है। तो आप यहां से आगे जब जब किसी को देखोगे, इस देखने का मतलब ये नहीं कि आप जाके घोर दो किसी को, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ एग्जैक्टली इज द पर्सन बिहेविंग। अगर मैं अभी किसी को यहाँ पे स्क्रीन पे लूं, अभी मैंने अब तक किसको नहीं लिया है, लेट मी चेक द नेम्स। शुभकामना, श्वेता, रितिका काशीकर, आर यू अवेलेबल फॉर द स्क्रीन? रितिका काशीकर, आर यू अवेलेबल फॉर द स्क्रीन? नहीं। महेश शेरकर साहब, हाथ का? यस सर, यस सर। Yes, I'll put you on the screen. Okay, so now if you have to think about your favorite song, what do you recollect about it? मेरा फेवरेट सॉन्ग फूलों के रंग से। Okay. ये जब गाना आप, जैसे ही आपको ये गाना याद आता है, सबसे पहले क्या याद आता है? वो गाने के बोल याद आते हैं, या म्यूजिक याद आती है, या वो हीरो याद आता है? गाने के बोल याद आते हैं। गाने के बोल याद आते हैं, म्यूजिक जो थी वो म्यूजिक है। हाँ। और उसका जो वो स्विट्जरलैंड का पूरा पार्ट है ना, हाँ, वो सब आंखों के सामने आ जाता है। हाँ। अब यहाँ पे आप एक बात देखो, व्हेन आई आस्क्ड हिम द फर्स्ट क्वेश्चन, ही सॉ, अब ऊपर देखा इन्होंने, मतलब ये बहुत ज्यादा विजुअल में बिलीव करते हैं। किसी भी चीज को अगर इनको चाहिए, एंड इंसान को पहचानने के लिए आपको उसकी आंखों की तरफ हमेशा देखना होता है। तो व्हेनेवर यू आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स इज, ये ऊपर देखा है या नीचे देखा है या साइड में देखा है। कल या परसों जैसे मैंने आपको कहा था, महेंद्र सिंह धोनी साहब का इंटरव्यू देख लो, ही विल सी लेफ्ट साइड डाउन, काइनेस्थेटिक। अपने पंतप्रधान मोदी जी ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, हाथ बहुत सारा हिलाते हैं, प्लस आंखें भी जब उनकी हिलती है वो ऊपर वगैरह नहीं जाती है, साइडवेज आंखें हिलती है। ट्राई टू सी हिज स्पीच, थोड़ा जूम करके देखना। ऑब्जर्विंग अ पर्सन इज इम्पॉर्टेंट। जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हो तो सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या याद आता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक इफ यू आर मैरिड, महेश सर यू आर ऑलरेडी मैरिड, इफ यू थिंक अबाउट योर मैरिज डे, what is that which you recollect first? ये मत बोलना कि गिफ्ट याद आते हैं। The whole atmosphere, फुल एटमॉस्फेयर, मतलब एग्जैक्टली क्या, वहाँ की आवाज याद आती है या वो हॉल दिखाई देता है? हॉल दिखाई देता है, और तो आवाज कहने की आवाज। हाँ, लोग पहले हॉल दिखाई दिया, राइट? हाँ, बराबर। उसके बाद आवाज। सो मीन्स ही इज अ कंप्लीट विजुअल पर्सन। इनको सबसे पहले किसी भी चीज को याद करना है तो सबसे पहले इनको याद आएगा कि क्या था। अगर मैं इनको ऑफिस के बारे में भी पूछूं इनके, तो इनको सबसे पहले इनके अकाउंट्स बुक याद आ जाएंगे कि आंखों के सामने अकाउंट बुक। तो ही इज अ कंप्लीट विजुअल पर्सन। बट अगर यही मुझे कहते कि नहीं वो शादी के दिन की मुझे शहनाई सुनाई दे रही है, तो प्रोबेबली ही वुड हैव बीन अ ऑडिटरी पर्सन। अगर ये बोलते नहीं मुझे वहां जो खुशबू थी, वो जो इत्र लगाया हुआ था, वो सबसे पहले नाक में आ गया, मीन्स ही इज अ काइनेस्थेटिक पर्सन।
हर इंसान को एक ही चीज अलग अलग तरीके से याद रहती है, and you yourself can find out that what is the first thing if you have to recollect about yourself. Now I'll take on screen यहाँ पे एक मिनट, हाँ, और कुछ लोग एकदम शांत बैठे हैं. Here comes नेहा डावर. नमस्ते मैडम. Namaste, sir. Okay, you have a car? I'm sorry? You have a car? Yes. Think about your car and describe it. What is that which comes in your mind first? So, it's an i10. Okay. Gray i10. पहले क्या याद आया? कलर याद आया, गाड़ी याद आई? कलर याद आया पहले. कलर याद आया सबसे पहले. So you are also a visual person. Now second question comes to you is, if you think about your marriage date, शादी के दिन को याद करते हो, तो सबसे पहले क्या याद आता है? हॉल याद आता है. हॉल याद आता है. आवाज, शहनाई की आवाज सुनाई नहीं दी, सबसे पहले हॉल याद आया. हस्बैंड का चेहरा भी याद नहीं आया, हॉल याद आया. So it was more about अपना चेहरा याद आ रहा है. So it was more about a feeling. अपना चेहरा याद आया ना, अपना चेहरा, अपना ये. So it was more about a feeling, where she will always say in her sentences also that आप करके तो देखो, आप करो. अगर आप हस्बैंड से भी बात करते होंगे तो डेफिनेटली यू मस्ट बी सेइंग दैट आप करके तो देखो, हम जाके तो देखते हैं. I say that a lot. Because she is a kinesthetic person. She will never say हम आप चलो, क्या आप देखो कितना अच्छा है, आप बोलोगे जाके देखते हैं. You want to experience that feeling because you are kinesthetic. क्योंकि इनको शादी के वक्त भी सबसे पहले हॉल महसूस हुआ. हस्बैंड का चेहरा याद नहीं आया, खुद का भी याद नहीं आया, बट हॉल महसूस हुआ. सो इज अ काइनेस्थेटिक पर्सन. सो इस तरह से जब आप किसी भी इंसान को एनालाइज करते हो, तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट वेदर अ पर्सन इज ऑडिटरी काइनेस्थेटिक. आपके हस्बैंड क्या कहते हैं? सुनो बोलते हैं, देखो कहते हैं? अब ये मत बोलो बात ही नहीं करते. Mostly he disagrees with me. नहीं, but what he says, rather he says, you see or you listen. देखो बोलते हैं या सुनो बोलते हैं? डिसएग्री का जो पैटर्न है ना, वो कैसे तोड़ना है वो आपको 2 दिन में सिखा दूंगा. So that he will never disagree with you. I'll be very happy to learn that. वो पैटर्न सिखा दूंगा सबको. बट वो बोलते क्या है? देखो बोलते हैं, सुनो बोलते हैं? सुनो बोलते हैं. सुनो मीन्स ही इज ऑडिटरी पर्सन. अगर आप उनको ये भी बोलोगे ना कि देखो मैंने आज कितना अच्छा खाना बनाया है, he will not even see it. He will not even see. देखो बोलोगे तो. बट अगर आप सुनो आज खाना बहुत अच्छा बना है, he will definitely listen to you. Try this. Because जब देखो बोलोगे तो his mind is not a visual mind. He will never even give a single thought to it. But जैसे ही आप सुनो बोलोगे, वो सुनने की कोशिश करेंगे. Same goes to you. अगर उन्होंने तुमको सुनो कहा, तो probably you might not even think about it. Because you are a kinesthetic person, you need a feeling. इसको और एक्सप्लेन करूंगा कल अच्छे तरीके से, या आज भी कर सकते हैं एक्चुअली. सर इन केस अगर कोई इंसान ज्यादातर समझो वर्ड यूज करता है तो दैट इज काइनेस्थेटिक. समझो ना, समझो इज आल्सो काइनेस्थेटिक. देखो अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सबके लिए. थैंक्स नेहा फॉर कमिंग ऑन द स्क्रीन. फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी एग्जांपल्स बहुत बार दिए, आज भी दूंगा, बिकॉज इट्स रियली अ एग्जांपल व्हिच कोरिलेट्स विद एवरी पर्सन्स लाइफ. फर्स्ट करो, वाइफ विजुअल है, हस्बैंड ऑडिटरी है. विजुअल वाइफ will always want to see the things. She wants to see the gifts. She wants to see what her husband has done. We are here specifically taking the example of husband and wife, क्योंकि सभी लोगों के साथ correlate हो पाएगा. Wife visual है, she will always want to see the things. Husband auditory है. Husband अगर suppose उनको अच्छे से अच्छा टेडी बेयर भी लेके आता है, वो बोलेगा, हस्बैंड बोलेगा, ये देखो मैंने आपके लिए टेडी बेयर लाया है, ये टेडी बेयर लाया है, या ये आपके लिए गिफ्ट लाया है. शी विल नॉट इवन सी टू इट, क्योंकि वो विजुअल है. शी वांट्स टू सी दैट थिंग थ्रू हर हस्बैंड्स आईज कि ये लाया है. मैं वाइफ विजुअल की बात कर रहा हूँ ना, कि वाइफ ऑडिटरी बोला मैंने.
नहीं सर, हस्बैंड ऑडिटरी बोला है सर आपने, हस्बैंड ऑडिटरी एंड वाइफ विजुअल। तो Yes, वाइफ sir. इज विजुअल, सो शी विल ऑलवेज वांट्स टू सी द थिंग्स। अभी अगर लाया भी है टेडी बेयर तो लाया है। अब आगे मजा देखो, हस्बैंड ऑडिटरी है, he will want to listen what wife says। वाइफ बोले कि हाँ बहुत अच्छा है, छोड़ दो, वहीं पे बात खत्म हो जाती है। बिकॉज ऑडिटरी हस्बैंड विल ऑलवेज वांट टू लिसन द अप्रिसिएशन फ्रॉम द वाइफ। साल के 25 मतलब जिंदगी के 25 साल भी जाएंगे, दोनों एक साथ रहेंगे, बट अगर विजुअल वाइफ है तो शी विल ऑलवेज वांट टू सी द थिंग्स। ऑडिटरी हस्बैंड जो है वो हमेशा चाहेगा कि मेरी वाइफ एटलीस्ट एक बार तो दिन में आई लव यू बोले, पर वो नहीं बोलेगी क्योंकि वाइफ विजुअल है। शी बिलीव्स इन सीइंग द थिंग्स, शी बिलीव्स इन शोइंग द थिंग्स। वो हस्बैंड को अच्छे से अच्छा गिफ्ट लाके देगी, बट चांसेस आर वेरी लेस दैट शी विल से आई लव यू टू योर हस्बैंड। बट हस्बैंड ऑडिटरी है, ही वांट्स टू लिसन इट। अब अगर वाइफ ऑडिटरी है, हस्बैंड विजुअल है, तो भी सेम रिवर्स होगा। हस्बैंड उसके लिए सब कुछ लाके देगा, बट जब तक बोलेगा नहीं आई लव यू तब तक उसको वो फीलिंग नहीं आएगी। अब अगर दोनों भी ऑडिटरी होंगे तो होगा कुछ नहीं, पड़ोसियों को रोज एंटरटेनमेंट मिलेगी, क्योंकि झगड़े हो जाएंगे बहुत। दोनों ऑडिटरी है तो पहले पहन कौन करेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेनेवर इवन व्हेन यू गो फॉर काउंसलिंग केसेस, ट्राई टू सी कि कौन ऑडिटरी है, कौन विजुअल है, कौन काइनेस्थेटिक है। अगर काइनेस्थेटिक वाइफ है, विजुअल हस्बैंड है, तो भी दोनों में क्लैशेस हो सकते हैं, बिकॉज वाइफ वांट्स टू फील दैट टच, वाइफ वांट्स टू फील दैट हग। हस्बैंड सिर्फ बोलेगा देखेगा नहीं होगा। सेम अप्लाइज इन द रिवर्स वे। सो व्हेनेवर यू अंडरस्टैंड दैट वेदर योर लाइफ पार्टनर इज ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और विजुअल, you have to behave accordingly. Same applies for your boss. जो लोग यहाँ पे बहुत सालों से जिन्होंने काम किया है, let me complete. बहुत सालों से जिन्होंने काम किया है, आप जब बॉस के केबिन में जाते हो, सपोज आपका बॉस ऑडिटरी है, सपोज आप एक प्रेजेंटेशन लेके जाते हो, बॉस से कहते हो सर मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, आप देखो। अगर बॉस ऑडिटरी है तो आपको डेफिनेटली ये बोलेगा हाँ बता दो तुम मुझे, मैं सुन रहा हूँ। बट इफ योर बॉस इज अ विजुअल बॉस, ही विल सी इट। एंड उससे भी 2 कदम आगे, इफ योर बॉस इज अ काइनेस्थेटिक बॉस, वो बोलेगा इसके प्रिंट आउट लेके आओ, मैं आराम से देख लूंगा हाथ लगा के। बिकॉज काइनेस्थेटिक पीपल ऑलवेज बिलीव इन टचिंग द थिंग्स। आप देखो, अगर आपका बॉस काइनेस्थेटिक है तो ही विल ऑलवेज से दैट शो मी। जो लोग सेल्स में है, आप देखोगे कि जब आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो, इफ योर क्लाइंट इज अ विजुअल क्लाइंट, आप उसको बस बोलो सर ये प्रोडक्ट मेरे पास है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इतना इतना, इवन ही विल ट्राई टू विजुअलाइज इट, एंड वो बोलेगा हाँ अच्छा है, देखने के लिए शायद ही मांगेगा वो। अगर वो ऑडिटरी है तो बस आपके बोलने पर वो विश्वास करेगा। बट अगर काइनेस्थेटिक क्लाइंट है, वो बोलेगा भाई तू कुछ भी बोल, मेरे सामने प्रोडक्ट का डेमो दिखा। ही वांट्स टू फील इट। बोल बच्चन मत करो। So try to understand whenever you are into sales, marketing, किसी भी फील्ड में आप हो, घर पे हो, if you are dealing with an auditory person, you have to use पापा को क्या auditory मैंने word. प्रिंट आउट मैंने भेजे, मेरे प्रिंट आउट लेकर आएंगे आज। ये देखो ये ऑडिटरी ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक कंबाइंड है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। नहीं दैट्स फाइन, बट यहाँ पता चल गया ना ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक का लाइव डेमो लेके आएंगे। एक्चुअली सर आपकी बात से मुझे याद है, मुझे एक्चुअली मोबाइल से पढ़ के सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता until unless I am having printouts in my hands. बट इसी बहाने लोगों को लाइव डेमो तो मिल गया कि ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक कैसे बोलते हैं। सो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू डील विद पीपल, सी व्हाट वर्ड्स दे आर यूजिंग, आपको खुद के लिए भी। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर बॉस इज योर बॉस बिकॉज ही हैज अ बेटर वोकैबुलरी देन यू। 2 दिन से मैं कह रहा हूँ आप सब लोगों से कि आपकी पूरी जिंदगी अब तक की अगर आप देखोगे, 20-25 वर्ड्स, 15-20 वर्ड्स के इर्द गिर्द ही पूरी जिंदगी घूमती है। नो वन हैज एक्स्ट्रा सेट ऑफ वर्ड्स बिकॉज हम लोग एफर्ट्स ही नहीं डालते हैं। एक ही चीज को अलग अलग नजरिए से अगर आप देखोगे तो यू विल सी दैट यू आर एबल टू विन ओवर द कम्युनिकेशन।
You will see that you are able to win over your boss, you are able to win over the, आप किसी भी फील्ड में हो, मेन ये है that your vocabulary should be good and that too a vocabulary which makes sense. अगर ऑडिटरी लोगों से बात करनी है तो ऑडिटरी वर्ड्स आपको कम से कम 20-25 ऑडिटरी वर्ड्स तो ऐसे आ जाने चाहिए. काइनेस्थेटिक हो तो काइनेस्थेटिक वर्ड्स आने चाहिए, विजुअल हो तो विजुअल वर्ड्स आने चाहिए, ऑडिटरी वालों को ऑडिटरी वर्ड्स आने चाहिए. एंड फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट योर ओन सेंटेंसेस. जो सेंटेंसेस आज मैं होमवर्क भी वैसे ही देने वाला हूँ सब लोगों के लिए. तो मेन ये है कि आपको सबसे पहले ये पक्का ध्यान में रखना है. तो ऑडिटरी लोग जो हैं इनके बोलने में मैक्सिमम ऑडिटरी वर्ड्स आते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑडिटरी वर्ड्स यूज करते हैं. काइनेस्थेटिक वाले लोग फीलिंग्स वाले वर्ड्स लेते हैं एंड विजुअल वाले देखो, कलरफुल, इस तरह से इनके वर्ड्स आते हैं. मैं पूरे वर्ड्स यहाँ नहीं दूंगा पर 25-25 वर्ड सबको लिख के लाने हैं, दैट इज फॉर श्योर. कैसे वो बता देता हूँ थोड़ी देर में. So when we say that a person is visual, when we say the person is auditory, when we say the person is kinesthetic, इनको पहचानोगे कैसे? चलो आज इस बात को भी कंप्लीट करते हैं. Whenever you are talking to any person, किसको दूं मैं स्क्रीन पे? ध्रुव साहब को स्क्रीन पे देता हूँ. चलो इनको पूरे स्क्रीन पे देता हूँ मैं खुद की पेन निकाल देता हूँ. Now he is on the screen. पीछे गेटवे ऑफ इंडिया है, ताजमहल होटल भी है. What is the color of your car? Blue. Blue. What is the color of the curtains in your bedroom? Brown. देखा यहाँ पे अभी इन्होंने जो किया, सबसे पहले he tried to recollect the information which is practically true. लेफ्ट में ऊपर में देखा इन्होंने, exactly ऊपर लेफ्ट में देखा. If he had to lie the things, इसको lie detector करके यूज मत करना, but I am trying to tell you, when the person wants to access the information which has actually happened, and if the person is visual, like he is a visual person, इन्होंने exactly ऊपर देखा लेफ्ट में, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन वहां पे ऑलरेडी स्टोर था. अब ध्रुव, कैन यू इमेजिन योर कार being driven by a red colored monkey? How exactly will it look? हाँ, यहाँ पे अभी देखो इन्होंने कहाँ देखा. सबसे पहले थोड़ा सा राइट में ऊपर गई नजर और फिर बीच में आ गई. ये बहुत ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है. जैसे ही इन्होंने राइट में ऊपर देखा, मीन्स ही स्टार्टेड क्रिएटिंग दैट इमेज इन हिज माइंड एंड देन दैट फीलिंग केम इन हिज माइंड. किसी भी इंसान से बात करते वक्त आपको उसकी आंखों की तरफ, एंड वो पहले 5 सेकंड में ही, बाद में इंसान संभल जाता है. The moment I asked him that how exactly will his car look when it is driven by a red colored monkey, he created that image and shifted it to the feeling. Exactly ऊपर उनकी आंखें गई. रिकॉर्डिंग में आप लोग बाद में देख सकते हो स्टॉप कर करके. एग्जैक्टली ऊपर गई. तो दिस इज टर्म्ड एज अ विजुअल विद द काइनेस्थेटिक इफेक्ट. अगर मैं इनसे कुछ ऐसी चीज पूछता, आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? यहाँ पर भी 1 मिनट के लिए ऊपर गई नजर, ऊपर गई है. हाँ, क्योंकि वो विजुअल उनके दिमाग में स्टोर्ड है उस गाने में. सो दिस प्रूव्स दैट ही इज अ कंप्लीट विजुअल पर्सन. अब और एक क्वेश्चन, आपके टीचर ने कभी आपको डांटा था? नहीं. आपके डैडी ने कभी आपको डांटा था? आपके डैडी भी शायद अभी ग्रुप में है, बट हैज ही स्कोल्डेड यू एनी टाइम? नो. Any incident like, okay, how was your first experience when you had driven your car? Enjoyed. My eyes went towards the left side. यहाँ पर इनका अगर आप एक्सपीरियंस देखोगे तो इनका ऑडिटरी एक्सपीरियंस है, उसमें उन्होंने जो एंजॉय किया, कहीं ना कहीं कुछ सूद म्यूजिक हुई होगी या कुछ ऐसा चला होगा जो उनके ऑडिटरी ब्रेन में परफेक्टली रिमेंबर, बिकॉज ही डिडंट सॉ अपवर्ड्स नाइदर ही सॉ डाउनवर्ड्स. एग्जैक्टली लेफ्ट में देखा उनकी पुतलियां. रिकॉर्डिंग में देख लीजिए.
मीन्स ही हैज ऑडिटरी एक्सपीरियंस ऑफ दैट कार, कि कहीं ना कोई प्लेजर साउंड होगा, कोई साइड में बैठा होगा या कुछ होगा उनकी खुद की गाड़ी के लिए. सो whenever you are trying to understand a person, try to see their eye patterns. आई पैटर्न पहले 5 सेकंड में ही आप देख पाओगे, बाद में नहीं देख पाओगे. सेकेंडली, देयर इज ऑल्सो अ टर्म कॉल्ड सेंसरी एक्यूटी. हर 5 सेकंड बाद इंसान का चेहरा बदलता है. एवरी 5 seconds, whenever you are speaking with someone, आमने सामने, every 5 seconds यहाँ का कलर चेंज होता है, and it defines whether the person is telling truth or he's faking around. तो ये especially people who are into sales and marketing, who are into a profession where you are counseling the people, यहाँ का कलर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ का कलर हर 5 सेकंड बाद चेंज होता है, 5 से 10 सेकंड बाद. Try to observe while you are teaching your kids, while you are speaking with your spouse. बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको सच का सामना करना है, बट ये देखिए कि किस तरह से कलर चेंज होता है. अभी यही झूठ बोलने वाला जो इंसान होता है ना, अगर सपोज इनको झूठ बोलना होता है ध्रुव साहब को, तो वो यहाँ लेफ्ट में ऊपर नहीं देखते, राइट में देखते, बिकॉज द थिंग्स विच हैव नॉट बीन क्रिएटेड. फॉर एग्जांपल सेल्स वालों के लिए, जो लोग सेल्स में हैं, जब आप आपके किसी कलीग के लिए पूछते हो कि हाँ कल तो उस क्लाइंट के पास गया था, क्या हुआ था, इफ ही हैज रियली गॉन देयर, ही विल सी लेफ्ट अपवर्ड्स. अगर वो गया ही नहीं है तो वो राइट अपवर्ड देखेगा, क्रिएट करने की कोशिश करेगा. अगला मैं बताऊंगा नहीं, वरना आप घर पे झगड़े करोगे. बट इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे एंड किस तरह से इंसान देखता है, उसकी तरफ जब आप देखोगे तो आपको खुद अंदाजा आ जाएगा that how exactly the things are changing. So here it was our today's visual, auditory and kinesthetic thing. Then अपने पास हितेन जी आप हैं क्या? Or you are left? हितेन चावड़ा जी है ना? Sir, I am there, coming a bit, sir. I am in washroom. Okay, ठीक है. So what if somebody is looking downwards? Kinesthetic. They believe Sir, in. I have a question. Let me finish. अपने को हितेन जी का कुछ तो छोटा सा क्वेश्चन भी एड्रेस करना था. बिफोर दैट नेहा जी ने पूछा कि अगर डाउन, तो आई वुड से आप महेंद्र सिंह धोनी जी के इंटरव्यू देख लीजिए, 2-3 मिनट के वीडियो क्लिप. यू विल एग्जैक्टली गेट टू नो व्हाट आई मीन बाय काइनेस्थेटिक. अमिताभ बच्चन, लेफ्ट डाउनवर्ड्स, बिकॉज दीज पीपल बिलीव इन फैमिली वैल्यूज. दे बिलीव इन हाउ एग्जैक्टली द थिंग्स शुड बी. ये तो कभी ऊपर देख के बात नहीं करते. किसी भी महेंद्र सिंह धोनी साहब के इंटरव्यू में देखो, वो ऊपर देख के बात नहीं करते हैं, नीचे. सुनील गावस्कर, स्ट्रेट. सबके इंटरव्यूज ध्यान से देखना चालू करो. यहाँ से आगे अगर आपको सच में एनएलपी सीखना है तो इंटरव्यूज ध्यान से देखो. झूठ बोलने वाले लोगों को अगर देखना है आपको, तो गो बैक टू मोनिका लेविंस्की एंड बिल क्लिंटन केसेस. यूट्यूब पे अवेलेबल है. बिल क्लिंटन के सारे वीडियोस देखो जब उसका इंटरोगेशन चल रहा था. सी हाउ हिज आई पैटर्न्स आर मूविंग, देखने जैसा है. फिर ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक अगर देखना है तो 2014 पुणे एसपी कॉलेज, नरेंद्र मोदी साहब की रैली देखो, तो उन्होंने जो भाषण किया था. यू विल गेट टू नो व्हाट इज ऑडिटरी एंड व्हाट इज काइनेस्थेटिक. सारे नेताओं के भाषण देखना शुरू करो, आपको पूरी तरह से एनएलपी की आंखों के पैटर्न समझ में आ जाएंगे. इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द पर्सन, एंड अनलेस एंड अनटिल यू आइडेंटिफाई अ पर्सन, यू कांट कम टू अ कंक्लूजन. सेकेंडली, विजुअल लोग जो होते हैं ना, वो चेस्ट से ब्रीदिंग करते हैं. ऑडिटरी जो होते हैं वो डायफ्राम से ब्रीथ करते हैं, एंड काइनेस्थेटिक पेट से ब्रीथ करते हैं. अभी इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके किसी को ऑगल करो. आपको ये देखने की कला आनी चाहिए कि किस तरह से वो ब्रीथ कर रहा है. देखते ही पता चलता है कि वो ब्रीथिंग कौन से पैटर्न से कर रहा है, किस तरह से वो इंसान है. So it makes lots of difference when you observe the people. So this was from my side. We have 10 more minutes and हितेन जी आप आ गए क्या वापस? Yes sir, yes आ गया. Okay. हाँ, आपने कुछ सवाल पूछा था कि कुछ डॉक्टर ने कुछ बोला है वगैरह. यस सर, एक्चुअली कुछ ईएनटी का इशू हुआ था मुझे ईयर में. हाँ. तो ही टोल्ड मी दैट आपको जो कर्ड है, बनाना है, वो सब चीजें, फ्रिज की सामान, वो सब आपको नहीं खाना है. Okay, close your eyes. Close your eyes. Think about that issue, whatever it was, pain या जो भी कुछ है. Think about it. Are you able to
feel that pain? Are you able to think about that pain, or what exactly it is? Yes, sir. It is. Are you able to think, or are you able to feel it? Feel it, sir. Feel it. Yes. Is the feeling heavy, or is it lighter? Lighter, sir. Lighter है. In what direction is it moving? Is it clockwise? Is it anti-clockwise? दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको फीलिंग नहीं आएगी, एंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा. वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है? सर आएगा. ध्यान से देखिए थोड़ा सा. क्लॉकवाइज सर. क्लॉकवाइज. वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल. Vertical. Now just do as I say, as it is moving in vertical clockwise. Okay. Now yes. Visualize as if I have put a handle on that wheel जो घूम रहा है ना वर्टिकल क्लॉकवाइज. उसको बस अब आपको विजुअलाइज करना है कि उसको एक हैंडल लगाया है, एंड वो जो क्लॉकवाइज घूम रहा है उसको जोर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए. आप हाथों से जोर से घुमाइए with full speed. See it that you are spinning it anti clockwise. बहुत जोर से, इतने जोर से कि उस मोमेंट पे आपको लगे कि अब ये रिवर्स नहीं हो सकता है. Do it fast. Fast, 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 stop. Now how is the feeling? Feeling very good, sir. Actually, feeling very relaxed. गई वो feeling? Yes, sir. Almost. वापस कर दो. Do it fast. आज आपको जाते जाते एंजाइटी की टिप दूंगा. दुनिया में एंजाइटी नाम की चीज होती ही नहीं है. लेट अस फिनिश दिस एक्सरसाइज. रिवर्स इट, रिवर्स इट, रिवर्स. फास्ट 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 फास्ट. स्टॉप. नाउ doctor has told you not to eat the curd, sensing that it will give you an cough and cold or any infection. Yes, sir. Visualize करो आपके हाथ में कर्ड रखा हुआ है. Are you feeling the ball of the curd in your hand? Yes, sir. What is the temperature? Around ठंडा है, मीडियम है, रूम टेम्परेचर है? रूम टेम्परेचर सर. रूम टेम्परेचर है. Yeah. Try to taste it. I'm sure you must have started feeling the feeling of that curd. Yes, sir. Try to feel it. Try to feel it. Try to eat it. Try to eat it. Yes, sir. Enjoy it with your taste buds. मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा. Yes, आ गया. और महसूस कीजिए, और महसूस कीजिए. अब ये देखिए कि वो कर्ड आपकी बॉडी में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक तरह से, बिल्कुल ठीक तरह से. उसका जो टेम्परेचर है वो भी बॉडी में जाते ही इस तरह से एडजस्ट हुआ है that it is not giving you that cooling effect. महसूस कीजिए उस इफेक्ट को. उस कर्ड को अपने पेट में जाने दीजिए. जितना खा सकते हो उतना खा लीजिए. अभी वो बहुत बड़ा बाउल है, चिंता मत कीजिए. Eat it. Eat it, swallow it. Try to enjoy that curd. And see how effectively you are able to digest that curd. As you are eating this curd, the temperature of the curd is changing to help you to have a balanced food. Feel it. Feel it. यही पूरी तरह से आपके कान में जहां पर भी आपको इन्फेक्शन हुआ था, पूरी तरह से वहां की फीलिंग को भी निकाल दे रहा है. Remove it. Feel it. Feel it. यहाँ से आगे आप जब जब कर्ड खाओगे, you will have the same feeling of curd getting completely digested in your body, and your body is reciprocating it positively. Feel it. Feel it. Feel it. 5, 4, 3, 2, 1. आंखें खोल दीजिए. वो कान में जो हेवीनेस था वो गया है फीलिंग का? Yes, sir. Almost. Yes, sir. पूरा जाएगा. Now I will put it this way. Anxiety नाम की चीज जिसके लिए I am not saying that you should not go for the doctor,
बट एंजाइटी नाम की चीज होती ही नहीं है. एंजाइटी इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड which comes whenever the circumstances are not in your favor. बॉस को मिलना है, गर्लफ्रेंड को मिलना है, इसको करना है, ये उस समय ये सब सारी चीजें एंजाइटी बन के आ जाती है. एंड एंजाइटी दुनिया में सभी लोगों को या तो चेस्ट में होती है या पेट में होती है. एंड इसमें भी 4 ही पैटर्न्स होते हैं. आइदर इट मूव्स क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज या वर्टिकल क्लॉकवाइज. दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको स्पाइरल में एंजाइटी हो. ये 4 ही पैटर्न्स हैं जो डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर ने पूरी तरह से कंफर्म करके बताए हैं. एंड दिस हैज बीन प्रूवन. एंजाइटी रिमूवल का एक वीडियो है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा सबके लिए. एनी टाइम व्हेनेवर यू फील एंजाइटी, यू कैन जस्ट रिवर्स दैट फीलिंग एंड यू आर आउट ऑफ एंजाइटी. किसी को चॉकलेट छुड़ाना है क्या? वी हैव 5 more minutes. चॉकलेट छुड़ाना है किसी को? चॉकलेट खाते हैं कोई? कोशिश करके देखो किसी को चॉकलेट छुड़ाना है तो. सर बच्चे बहुत खाते हैं, बच्चों को छुड़वाना है क्या आपका बच्चा? हाँ सर, है. बुलाओ. सिगरेट वाली टेक्निक का बताओगे क्या? सर सिगरेट वाले से भी बदतर है. नहीं, कुछ नहीं छुड़वाना अभी. आप बुलाओ 15 आपके बेटे को. बेटी है सर. हाँ, मैं बुलाओ. बुलाती हूँ. बिटिया है, मैं बुलाती हूँ सर. हाँ, मैं बिल्कुल. बुलाती हूँ. लेट सर तब तक आप मेरा फीवर का बता मेरा एक दीजिए. क्वेश्चन है सर. मेरा एक किसका फीवर का? श्वेता. मेरा एक क्वेश्चन. श्वेता. श्वेता, you yourself are a hypnotherapist, but yes, चलो एक काम करो. Yes, Bring your sir. finger in front of your eyes. Bring your finger in front of your eyes. Try to give it a shape. जल्दी आओ. Try to give it shape. Are you able to see the fever in front of you? Yes, sir. Is it having any temperature? Yeah, showing 99.9 something. That's fine. It is showing 99.9, right? Yeah. Now, visualize that as if you are standing on a machine which is displaying your temperature as per your body. Okay? Yeah. Now feel that I have kept 2 knobs on that machine. The moment you are standing on the machine, see your present body temperature, which is 99.9, 100 जो भी है. अब जैसे ही आप मेरी आवाज सुन रहे हो, धीरे धीरे जब आप नॉब घुमाना शुरू करोगे तो आपके बॉडी का टेम्परेचर कम होता हुआ आपको खुद दिखाई देगा. And you will start feeling that change in your body. As I am counting from 10 to 1, you will start rotating the knob, and with every rotation, you will see that the temperature of that particular screen is reducing, which is with respect to your body. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bring it to the normal 97. 4, 3, 2, 1. Now start feeling how differently your body is going to respond when you are at 97 degrees exactly. Feel that temperature. Much lighter, sir. Feel that temperature. Your body is exactly at 97 degrees Celsius and probably you might feel thirsty. Yeah. Feel that temperature. Feel that temperature. See how your body is responding into agile way. See how your body is responding into agile way. Try to breathe in the normal way. Try to breathe in the normal way at a 97 degree temperature. Your body is completely stable. Your body is completely stable. The knob is now completely fixed at 97 and your body is completely stable. See how your body temperature is coming to the normal. Feel that happiness. On the count of 5, today night when you will do this exercise at 3 to 4 times, tomorrow morning you will see a complete relaxation, almost 80 to 90%. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Close your eyes and open your eyes. Close and open your eyes.
हाथ लगा के देखो. I'm having that feeling of the cold thing. थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है. Thirst. Thirsty. Thank you so much, sir. कल तक बुखार उतर जाएगा. एक्सरसाइज में सर सब Yes, अपने she मुंह is पे here. और ठुड्डी पे हाथ लगा के बैठे थे. किसको? सब लोग ऐसे बैठे थे. हाँ, देखने के लिए. ये क्या ऑब्जर्वेशन है? नाउ दिस इज नॉट सी राइट it नाउ. works. इंटरप्रीत जी भी अभी कर लगा के सिर पे लगी है. It works 100%. चावड़ा जी भी मुंह पे अभी- लगा के बैठे हैं. अभी और ये जीविका जी मैडम भी का इसी देखते हैं तरह क्या से बैठी मैजिक है. होता है. थैंक यू सो मच सर. नाम क्या है इसका? नाम क्या है? सताक्षी. 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 सताक्षी चॉकलेट है? एक चॉकलेट लेके हाँ, आओ. घर में है. यस है. लेके आओ है खाने. सर. ले आऊं सर? हाँ हाँ बिल्कुल. देखो तो कोशिश तो करते चाहिए ना चॉकलेट छूटा के नहीं. Sir, till then, can आप I ask one thing? कौन से स्टैंडर्ड में हो? 11th. 11th. And what is your favorite food? सच तो कोई फेवरेट फूड नहीं है. Okay, चॉकलेट है. नहीं, चॉकलेट तो सबको पसंद होती है. सबको पसंद होती है ना. सर मुझे तो पसंद नहीं है. देखते हैं आपको आज से आगे पसंद आएगी क्या. खोल दो. अरे सीरियसली खोल दो. यू एंजॉय ईटिंग चॉकलेट नाउ. And we are recording it live. Like it's an open challenge to me. Unmute. खा दो. Close your eyes and just eat, enjoy the chocolate. Now keep your eyes completely closed. और थोड़ा सा मुंह में भर दो चॉकलेट. और खा दो थोड़ा सा. और हाँ अब खा दो. शायद अगली बार आपको खाने को ना मिले. और खा दो थोड़ा. मुंह में रख लो complete. Now don't chew it further. Okay, you have a chocolate in your mouth. Now, Shatakshi, feel that chocolate which you are eating. See how exactly it is melting in your mouth. बहुत मजा आ रहा है. चॉकलेट का टेस्ट एंजॉय करो. This is one of the most wonderful chocolate in the universe. Feel it. Enjoy करो उस चॉकलेट को. Try to chew it slowly. Chew it slowly. और चॉकलेट खाओ. आंख बंद रख के ही और चॉकलेट खाओ थोड़ा. Have some more chocolate. Enjoy it. Chew it completely. Now, as you are chewing this chocolate is sticking on your gums and also on your teeth slowly as you are enjoying the chocolate. See how it is sticking on your gums and your teeth, also below your tongue, and giving you that sticky feeling, which slowly overnight will start causing some germs at that place. जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, धीरे धीरे अब ये जो चॉकलेट तुम्हारे मुंह पे लगी हुई है अंदर, तुम्हारे दांतों में, तुम्हारे जीभ के नीचे, पूरा जो मुंह अंदर से एकदम स्टिकी हुआ है, वहां पे देखो ये जर्म्स घूमने लगे हैं. यही चॉकलेट जो जर्म्स घूम रहे हैं, ये चॉकलेट तुम अभी भी खा रही हो. ये जर्म्स जो घूम रहे हैं, महसूस करो उनको चबाते हुए. चॉकलेट चबाते वक्त महसूस करो जर्म्स को चबाते हुए. चबाओ अपने मुंह में. उस चॉकलेट को चबाओ. देखो उस जर्म्स को कैसे अपने दांतों के नीचे आ रहे हैं. किसी चीज को जब चबाते हो उसको महसूस करो किस तरह से तुम्हारे मुंह में पूरी तरह से वो जर्म्स फैल रहे हैं चबाते हुए. यहाँ से आगे जब जब तुम चॉकलेट खाओगे, तुम्हें ये जर्म्स अपने आप आपके मुंह में दिखाई देंगे, सुनाई देंगे. चबाते वक्त उसकी आवाज सुनाई देगी. देखो पूरा तुम्हारा मुंह इतना स्टिकी हो चुका है कि अब तुम्हारे मुंह के बाहर भी सारे चॉकलेट और उसके जर्म्स दिखाई दे रहे हैं. तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे आसपास आने को तैयार नहीं है. देखो किस तरह से तुम्हारा मुंह पूरा चॉकलेट के कलर से भर चुका है. महसूस करो उस चॉकलेट को. यही जर्म्स जो तुम पेट में, यही जो जर्म्स खा रही हो वो तुम्हारे पेट में जा रहे हैं. खाने की कोशिश करो और चॉकलेट खाने की कोशिश करो. थोड़ा हाथ में से चॉकलेट लो. जितने चॉकलेट यहाँ से आगे खाओगी ये सारे जर्म्स तुम्हारे पेट में जाने वाले हैं. अगले चॉकलेट की बाइट लेके देखो. अगले चॉकलेट की बाइट लेके देखो. यहाँ से आगे जब जब चॉकलेट खाओगे, कीप योर आइज क्लोज्ड एंड ट्राई टू ईट अ चॉकलेट. कीप योर आइज क्लोज्ड एंड ट्राई टू ईट अ चॉकलेट. यहाँ से आगे जब जब तुम चॉकलेट खाओगे,
तुम्हें बिल्कुल वही चबाते हुए कीड़ों की आवाज सुनाई देगी, बिल्कुल तुम्हारे मुंह में पूरी तरह से वो सुनाई देगा। तुम्हें महसूस करो उस चॉकलेट को खाते हुए। देखो तुम्हारे दांत कैसे कलरफुल हो चुके हैं। वो कीड़ों का जो ब्लड है वो भी तुम्हारी आंखों के सामने पूरे तुम्हारे मुंह में फैल चुका है। खाने की कोशिश करो इस चॉकलेट को, इस चॉकलेट को खाने की कोशिश करो। यहाँ से आगे जब जब तुम चॉकलेट खाओगी, कोई भी चॉकलेट खाओगे अगले 6 महीने, तुम्हें यही फीलिंग आएगी। अगले 6 महीने तक तुम जब भी कोई चॉकलेट खाओगे तुम्हें यही फीलिंग आएगी। खाने की कोशिश करो। हाथ में जो चॉकलेट है देखो उस पर भी कीड़े लगे हुए हैं। आंखें खोल के देखो, उस चॉकलेट में तुम्हें कीड़े दिखाई देंगे। ध्यान से देखो उसे, अब खाने की कोशिश करो। ध्यान से देखो उसे, खाने की कोशिश करो। ट्राई टू ईट दैट चॉकलेट, ट्राई टू ईट इट, ट्राई टू हैव अ गल्प ऑफ इट, ट्राई टू ईट इट। देखो कुछ उल्टी उल्टी होती है क्या, देख लो एक बार, खा के देख लो उस चॉकलेट को, देखो कितना अच्छा टेस्ट है। टेस्ट करके देखो। ये यहाँ से आगे आप जो भी चॉकलेट हाथ में दोगे आपको यही सब दिखाई देगा, यही सब आपके माइंड में जाएगा। 5 4 3 2 1। अब नॉर्मल खा के देखो, जस्ट ट्राई टू ईट, कोशिश तो करो। लेट अस सी इफ आई हैव फेल्ड। नहीं हो पाएगा। कोशिश करके देखो एक बार। मैंने वर्कशॉप में लाइव किया था, यहाँ पर भी लाइव ही हुआ है। वंडरफुल वंडरफुल, करके देखो। बिल्कुल नहीं अब तो। चलो गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। तो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर टुडे। हम लोग कल वापस मिलेंगे। थैंक यू बोलो सर को। थैंक यू सर। थैंक यू एंड बी ब्लेस्ड। 6 महीने बाद तुम चॉकलेट खा पाओगे, चिंता मत करो। या कल आंसर निकाल देना है तो निकाल सकते हैं, कल इमीडिएटली निकाल देंगे। अच्छा, कल के लिए असाइनमेंट और हाँ असाइनमेंट आ रहा ना सबके लिए। असाइनमेंट ये है कि आप सबको 25-25 वर्ड्स ऑडिटरी, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक के 25-25 वर्ड्स लेके आने हैं। जैसे सी विजुअल में, जैसे फॉर एग्जांपल सी लुक ब्यूटीफुल, ऑडिटरी में सी पीसफुल, साउंड जिंगल म्यूजिक, काइनेस्थेटिक में रफ स्मूथ हार्ड। इस तरह से आप सबको 25-25 वर्ड्स बना के लाने हैं कंपलसरी कल शाम को। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप सब लोग असाइनमेंट सबमिट करो। चलो थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन कि सारे मुझे सीरियसली भागना है। हम लोग कल क्वेश्चन ले लेंगे, आप लिख के रखिए क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, चलिए थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वापस कर देना, तुम्हारे लिए बुखार उतर जाएगा। यस सर, श्योर, आई विल डू दैट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।